हेलो जी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे जहाँ तक मुझे दिख रहा है। बिकॉज आई कैन सेंस वेरी काम एनर्जी इन यू। बहुत ही मुझे आप लोग काम और शांत दिखाई दे रहे हो इस वक्त। बेशक चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही है, आई कैन सी दैट यू आर नॉट वेरी अनकंफर्टेबल और एंशियस अबाउट एनीथिंग दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। पहले आपके संग बहुत हुआ करता था दैट मुझे ना पता चल जाए दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दिस थिंग। But I think now you have एक awareness. I think I can see you are going to, maybe you're feeling in yourself that everything is going to happen for a reason and is going to happen for my good way. लेकिन जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा. So today message is about I can see I always try to read the present energy, that what are you going through, what are you thinking about it, if there any confusion, if there you want to know the answer about something. I always try to do, मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मैं फ्यूचर का इतना ना सोचूं. I always try to that catch the energy of the present scenario, that what our people are going through in life right now in their life. So I can see that in this reading, because that your core energy, the six of cups and the eight of pentacles, I can see you are thinking about something, not to stress about it, but thinking about it to give something or someone to chance. एक मौका देखने की आप जो है सोच रहे हो, that I should give the chance or not. Because somewhere you feel that you want to give chance to these things and this person, but your past experience was not very good, in that scenario, whatever it is. whatever it is, मुझे दोनों चीजें जो है मुझे आ रही है, आपकी करियर की भी और किसी पर्सन की भी, रिलेशनशिप की भी. मुझे दोनों ही चीज आ रही है कि पर एक जो बात जो है वो सिर्फ ये है दैट आई शुड गिव चांस और नॉट. So I can say that you are introspection, सोच रहे हो थोड़ा सा कि should I give it, should I give chance or not? Because internally you want to give, you want to feel all the happiness, all the satisfaction, like uh, want to feel everything in your life that you have lost one time in your life. So I can see that fresh energy in you, that you want to give a chance to things, to the people, but you are maybe waiting for a sign that should I give it or not. So this is reading is all about it. अगर आपके संग ये रेजोनेट होती है तो मे बी दिस इज गोइंग टू फॉर यू. So the card is saying that you can give, and you should give the chance to the person, to the things, to that particular passion, to that thing that satisfy your soul. You feel fulfillment in doing that work. So they are saying that you can give the chance, because now whenever you're going to give the chance to the things, to the person, the relationship, you're going to be fully aware about the things. आई कैन सी दैट अवेयरनेस इन यू, दैट आप स्टुपिडिटी नहीं करने वाले हो. बहुत ही एक सोच समझ के, दूर की सोच के आप इन चीजों पे और लोगों पे इन्वेस्ट करने वाले हो. तो वो कह रहे हैं दैट योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंजल आर सेइंग दैट यू आर रेडी टू गिव द चांस, बिकॉज यू आर एबल टू हैंडल दोज थिंग्स. ओके, इमोशनली, स्पेशली इमोशनली और मेंटली यू आर एबल टू हैंडल द थिंग्स. और पहले की आप जो है गलतियां, अगर आप ये सोच भी रहे हो कि कहीं मैं गलतियां जो दोहराव ना दूं, तो वो चीज नहीं होने वाली. बिकॉज आई कैन सी दैट यू हैव वेरी प्रिपेयर्ड पर्सन. आपके पास्ट के एक्सपीरियंस से आई कैन सी इन यू. सो यू आर गोइंग टू गिव इट चांस, बट फुल्ली अवेयरनेस. एक वो कहते हैं ना, एक बिल्कुल ही कहते हैं, yes, you're going to be fully available, fully emotionally, but you are not going to be obsessed about it or fully detached to yourself. No, you're going to be think about yourself also this time. पहले शायद आप अपने बारे में इतना नहीं सोचा करते थे, पर you are going to think about, ऐसा लग रहा है कि now you're going to think into a balanced way. Okay, so there's so the answer, if you're the sign, if you're asking, so it's yes. तो वो कह रहे हैं कि you should go for it and you're going to excel in it. Don't worry,
एंड आई कैन सी वेरी, मतलब आपको इतनी कोई चिंता-विंता नहीं है। बस एक थोड़ा-सा साइन चाहिए था, क्योंकि शायद आप अंदर से पहले से ही बहुत प्रिपेयर हो चुके थे। बस वो एक साइन का हल्का-सा एक इंतज़ार कर रहे थे कि अच्छा मुझे कहीं से कुछ पता लग जाए तो मुझे और कन्फर्म हो जाएगा चीज़ों का। तो वो ये कहे ओके यू गो फॉर इट, बिकॉज़ योर एंजेल्स आर विद यू, योर स्पिरिट गाइड्स आर विद यू। और जिस लाइक यू नो और ऐसा लग रहा है कि जो लाइक यू नो आपने सीड्स जो बोया हुआ था काफ़ी टाइम से, नाउ इट गोइंग टू लाइक यू नो फुल्ली ग्रोन ट्री, लाइक यू नो और फ्रूट्स भी आने वाले हैं उसपे। और सब कुछ आपकी मुझे फ़ेवर में जो है चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। दैट आफ्टर द वेरी लॉन्ग हार्डशिप आई कैन सी लाइक यू नो जैसे फाइनली जैसे थिंग्स आर गोइंग टू हैपन चेंज इन योर फ़ेवर। Finally things are going to happen. Everything is like convert, like that magically convert into your favor. Maybe your आपकी एनर्जी अंदर से ऐसी हो चुकी है, आपको हमेशा नर्वस सिस्टम जो है हील हो चुका है पास्ट एक्सपीरियंस से। काफी नर्वस सिस्टम जो है आपका डर लगता था, फियर थी, इनसिक्योरिटी थी, वो मुझे सारे आपके ट्रॉमा हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहता है ना, इट्स ऑलवेज स्टार्ट इट विद इन। जब आप अपने अंदर से काम कर लेते हो तो एक्सटर्नली आप देखते हो दैट एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माय फेवर। तो दैट इज गोइंग टू हैपन विद यू। आई कैन सी दैट दैट nothing is going to wrong, because you are going to handle the things very properly। बिकॉज आप अंदर से मुझे नर्वस सिस्टम जो है आपका लाइक मुझे बहुत हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी अंधेरे के बाद आपकी लाइफ में रोशनी आने वाली, वेरी ब्राइट एनर्जी आई कैन सेंस इन योर लाइफ। If this is person, yeah, I think this is your soulmate, and you are going to have, I think the uh, mm, in इस क्या कहते हैं साल के लास्ट में, you're going to have everything whatever you have imagined in your life। और ये इतना फास्ट और इतना इजी प्रोसेस होगा, एंड यू विल लाइक ओके फाइनली थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन माय फेवर। जो पहले पहले छोटी छोटी चीजों को भी आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, नाउ दिस इज टाइम यू गोइंग टू फील दैट बिग थिंग्स आर गोइंग टू हैपन वेरी इजीली विथ मी। And I can see that that your angels are with you, they are helping you, they are showing you way, they're always here to guide you. If this is a sign for you, a message for you. If you ask for a direction from the God, they are going to show you. You know, they are going to show you like a very strong connection with God. I can see that if your problem, situation, you're going to share with the God, and that everything is they are going to help। और आपके लिए ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि आपकी आंखों के सामने इस वक्त बहुत ही हल्का फुल्का सा फॉग है, बस समझ रहे हो, बहुत ही हल्का फुल्का सा फॉग है। जो एक जो पास्ट के लोगों की वजह से जो है लाइक नेगेटिव एनर्जीज की वजह से जो उन्होंने बना दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक फॉग है, कुछ नहीं है इसकी वजह से। आपकी जो है काम बिगड़ेगा नहीं। ओके, तो डोंट वरी, वो ये कह रहे हैं। एंड यस, और ये भी कह रहे हैं दैट दैट योर एंजल्स लाइक ये भी कह रहे हैं दैट एक मिनट, अभी आई बात तो वो निकल गई। ये भी कह रहे थे कि ओ माय गॉड व्हाट क्या था वो, लिटरली वो माइंड से स्लिप हो गया मेरे। अ, हाँ, वो ये कह रहे हैं दैट इफ यू आर थिंकिंग कि यू आर गोइंग टू लॉस्ट, जैसे आप किसी खाई में गिरने वाले हो, चीजें वही रिपीट होने वाली हैं। तो वो ये कह रहे हैं दैट इफ द सिचुएशन इज फ्रंट ऑफ यू, कि यू आर गोइंग टू लॉस्ट अगेन इन दिस साइकिल, अगेन इन दिस ट्रॉमा। और अगर आप खुद से भी कहते हैं ना, वो आपको खुद का भी डर लगे कहीं मैं खुद कोई गलती ना कर दूं, तो वो ये कह रहे हैं चाहे आपकी वजह से चाहे किसी और की वजह से, अगर वो ट्राई भी करते हो आप लोग लाइक तो गलती से अनइंटेंशनली और लोगों की वजह से उस ट्रॉमा में जाने की आपको डर लगता है कहीं मैं दोबारा ना चले जाऊं, तो वो कह रहे हैं कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज वो जो साइकिल है आप वो क्लोज कर चुके हो। ओके, वो जो साइकिल है ना, वो सर्कल है, वो क्लोज हो चुका है। यू नॉट गोइंग टू एंटर इनटू थिंग्स। अगर कोई ट्राई भी करेगा ना कुछ डालने की, वो तब भी वो चीज जो है नहीं होने वाली है। दिस द मैसेज फॉर यू, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग यू। ओके,
They are saying they were always protecting you, but I can see now you are going to feel their presence in your life. Yes, you're going to feel their presence in your life, that आपको लग रहा है कि मेरे सामने सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन beside this, like behind this scene, things are literally happening in your favor. शायद आपको पता भी नहीं है. Maybe this time you have like no proof, nothing you have in your hand, और एक fog है आपके आगे, जैसे मुझे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वही कह रहे हैं that nothing is permanent. Okay, they are going to watch it, so don't worry, they are going to watch it. वही कह रहे हैं कि अब तुम अपनी चिंता मत करो, लेकिन अब अपनी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा. ओके, यस. And after this, like all your wishes, like your soul, like very satisfied, emotional fulfillment I can see in your life, in the last last month of this year. 9 month कौन सा होता है, वैसे सितंबर का होता है. दिस इज गोइंग टू वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू. एंड द जून 69 नंबर, कोई आई थिंक कोई 69 कोई वो होती है मैनिफेस्टेशन रिचुअल, आपने वो भी किया है तो दैट इज गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर. मे बी शायद 69 ही होता है जहां तक मुझे पता है. सो या, दिस इज द मैसेज फॉर यू. I hope it is resonate with you, and it is help you to find the answer. And I know that is going to help you, because mm, don't worry, okay? Just just God is saying that don't worry, okay? Yes, be in the present moment. जहाँ पे हो ना इस वक्त वहीं पे रहो. Yes, things are going to work in your favor, work out in your favor, and all things are not going to repeat. And if they are going to repeat, you're not going to have the same response. I can see this. And if the situation is not in your hand, it is God hand. Okay, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप जो भी बोलोगे, आप जो भी कुछ काम करोगे, या फिर दूसरे लोग कुछ भी बोलेंगे, कोई भी सिचुएशन क्रिएट होगी, ऐसा लग रहा है दैट इज गोइंग टू क्रिएटेड बाय गॉड फॉर योर, वो आपकी भलाई के लिए वो चीज वो होगी. ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर अ रीजन, इट इज गोइंग फॉर इट, एंड रीजन इज गोइंग टू बी वेरी गुड. सो दिस इज द रीडिंग. आई होप इट रेजोनेट विद यू. प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में. तब तक अपना ध्यान रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी को सुनने की ज़रूरत है तो उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा. तब तक अपना ध्यान रखिएगा. ओके, राधे राधे, हर महादेव.